Assalamu alaikum. Today we are with Mr. Kashif Shamim, the Director HR of Farm Evo Private Limited. On behalf of Logic Solutions and HR Pulse, we are very thankful, sir, that you have taken time for us. Pleasure is all mine. Thank you. So, sir, tell me about yourself and your academic journey. Okay, my academic journey actually, I always been, fond of computers and softwares, So at the age of 18, I got a chance to, pursue my, interest in computer engineering, and then I actually went into Sir Syed University for my computer engineering. So after 4 years of hard work, finally I actually came out as a computer engineer, and at that point in time it was बड़े एक कहते हैं ना कि खुशी और फैमिली में होती थी कि यार कोई कंप्यूटर इंजीनियर है क्योंकि एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड इन 2002 सो जो इंटरेस्ट था उसके हिसाब से तो आई ग्रेजुएटेड एज ए कंप्यूटर इंजीनियर बट जॉब मार्केट उस वक्त बड़ी जो है ना अनसर्टिनिटी की सिचुएशन में थी क्योंकि देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ 9/11 इफ वी ऑल रिमेंबर एक्चुअली सो then I started after a few months struggle I got a chance to work in a software house as a software developer and I started working as a software developer and at that point in time I was working on certain products which is related to payroll and human resource solutions and all that. So this is my the first you can say instinct at a particular company. Then after working for about like a year or so, I moved to England for pursuing my masters in computer networks and in mobile computing. So, but after I land up in England, the job market was actually was became from bad to worse, and I thought at that point in time that I should change my field from computer to some other in order to get relevant for the market. So as I was working in on software which is related to payroll and human resource management. So I decided to, start my master's in human resource management. And after a few struggle, because directly getting admission into human resource management in England is not very easy. Because when you have a pre-engineering and an engineering degree or engineering background, but later on I end up uh, in University of Salford, and after that, like in 2 years' time, I completed my masters, and after that, I came back in 2006, and since 2006, I'm working in Pakistan. सर, जैसे आपने अभी बताया कि यू हैव चेंज्ड योर फील्ड, तो ऑब्वियसली जब आपने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया तो इसमें आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस आए होंगे और इसमें सपोर्ट की भी बहुत कमी हुई होगी, जो लोग सपोर्ट ही करते हैं यूजुअली, क्योंकि आपने मास्टर्स भी अपनी फील्ड में किया था, तो इसके बारे में कुछ बताइए, अपनी ये जो आपकी जो एचआर की जर्नी है इन लीडिंग एंड मैनेजिंग एचआर टीम, इसके बारे में बताइए। राइट अच्छा ऑब्वियसली जब आप अपनी फील्ड चेंज करते हैं तो यू ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिकॉज यू स्पेंट गुड 4 years in some other degree but I think that move was very timely और उससे फायदा ये हुआ कि जब आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चालू रखते हैं और अगर आपके पास वो चीज़ों की जो है एक नॉलेज अच्छी होती है और उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ होता है सॉफ्टवेयर पे और जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फील्ड में आते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम योर बैकग्राउंड सो जर्नी बड़ी अच्छी रही और उसके बाद जो है वो उसने काफ़ी सपोर्ट किया काफ़ी हेल्प किया उसी एक्सपीरियंस ने मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर तो अम, उसके बाद से अगर मैं एक्सपीरियंस वाइज बोलूँ तो तकरीबन 4 कंपनी में मैंने काम किया है दिस इज द फोर्थ कंपनी वेयर आई एम वर्किंग फॉर द पास्ट 10.5 years और जहाँ तक आपने जिस तरह से कहा कि हाउ डू आई मैनेज एंड लीड माई टीम मेरा बड़ा सिंपल मंत्रा है या सिंपल फॉर्मूला है कि
किसी भी टीम को लीड करने के लिए सबसे पहले एक विजन की जरूरत होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट से, अपनी टीम से चाहते क्या हैं, क्या उनको एक लॉन्ग टर्म विजन आप देते हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर उस विजन को अचीव करने के लिए क्या वैल्यूज आपने सेट करनी है, और उस वैल्यूज के साथ साथ फिर आपने हर ईयरली असाइनमेंट्स, ईयरली ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करने हैं, ताकि आप उस विजन तक स्ट्राइव हमेशा करते रहें और उसको आप अचीव करने की कोशिश करते रहें। सर यूजुअली ऐसा होता है कि जो एचआर की जो फील्ड है उसमें अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा कम होती है। यूजुअली कंपनीज में आप देखें तो जो प्रमोशंस भी होते हैं वो डायरेक्टर के बाद नहीं होते हैं, या फिर मतलब इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन, हालांकि व्हाट आई फील कि एक हम्म। एचआर बैकएंड पे सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको संभाल के बैठी हुई होती है बेसिकली, पर तब भी अप्रिसिएशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह? अच्छा, जो मैं आपका सवाल समझाऊं वो एप्रिसिएशन मुराद ये है कि जो उसके अपने स्किल्स हैं वो कितने ऊपर तक जा सकते हैं जी। एचआर के। अच्छा, हाँ, यू आर राइट कि एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें तो काफी एचआर हेड्स या डायरेक्टर एचआर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं। और अब जिस तरह की एक रोटेशन बेस्ड कंपनीज में एक वो होती है कि आप मुख्तलिफ रोल्स चेंज भी करते हैं, असाइन भी करते हैं, तो एचआर में भी इट्स गुड के पीपल फ्रॉम फाइनेंस एंड फ्रॉम सप्लाई चेन दे आर एक्चुअली कमिंग टू एचआर, और फिर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी बात सही है कि उसमें एक सर्टेन लेवल तक ही एप्रिसिएशन होती सर टेल अस अबाउट फार्म ईवो प्राइवेट लिमिटेड, क्या विजन है और क्या उनकी जो है ना फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में बताइए। है। राइट। फार्मियो प्राइवेट लिमिटेड एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 99 में हमने इसको स्टार्ट किया था। इट्स बीन लाइक माशाल्लाह 24 इयर्स, और ये जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी है। फार्मियो प्राइवेट लिमिटेड जो अपने आप को डिस्टिंग्विश करती है, एक तो जो विजन है फार्मियो का वो है टू बिल्ड अ हेल्थियर सोसाइटी, एक सेहतमंद माशरे का क़याम। और एक सेहतमंद माशरे का क़याम से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है, उसमें हम ज़हनी सेहत की बात भी करते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल सेहत की बात भी करते हैं। तो एक तो ये हो गया जो कि फार्मिंगो का विजन है, जो कि थोड़ा सा यूनिक है एज कम्पेयर टू, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और एक बस एक स्ट्राइव करना है आपने सेहतमंद माशरे के लिए। तो अपनी तमाम एक्टिविटीज, अपने तमाम प्रोजेक्ट्स, अपने तमाम सीएसआर इनिशिएटिव्स हम इसी के गिर्द रिवॉल्व हमारे होते हैं। राइट। दूसरा ये है कि फार्मिंगो अपनी वैल्यूज को बहुत वैल्यू करता है। हमारी वैल्यूज, शायद आप लोग अभी जब आए होंगे ऑफिस तो रिसेप्शन पे भी आपने लिखी हुई देखी होंगी, तो वो सिर्फ वहां पे लगाने का मकसद नहीं है, एक्चुअली उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी आर वैल्यूइंग आवर वैल्यूज। तो वो बड़ा सिंपल हमने रखा हुआ है अपने लोगों के आसानी के लिए, कि उसका नाम हमने आई ट्री रखा है, विच इज ऑब्वियसली इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एथिक्स एंड एक्सीलेंस। तो ये 5 वैल्यूज हैं हमारी, और इन वैल्यूज को बड़ा हम एग्जिबिट करते हैं बार बार अपने कल्चर के थ्रू, बार बार उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं। फार्मिंगो ने जहाँ पे नेशनल कंपनीज में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया है इन द पास्ट लाइक 24 इयर्स, करंटली जो रैंकिंग है उसमें वी आर एट द 18th नंबर, और नेशनल में वी आर एट द 13th नंबर। और उसके साथ साथ एक यूनिक फीट अभी फार्मिंगो ने अचीव किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से सर्टिफाइड हो गए हैं, which is we are only the third company in Pakistan and 74th in entire world. तो ये भी एक यूनिक अचीवमेंट है फार्मिंगो के लिए। फार्म ईवो की हायरिंग प्रोसीजर के बारे में बताइए। अच्छा, हायरिंग प्रोसीजर फार्मिंगो में लाइक अदर कंपनीज जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, बड़ा स्ट्रक्चर्ड हमारा प्रोसेस है। उसमें हम ऑनलाइन भी एप्लीकेशन लेते हैं और मैनुअल एप्लीकेशन भी आती हैं उसमें। लेकिन एक अगर टिपिकल प्रोसीजर ये होता है कि अगर हम कोई भी अपनी वैकेंसी पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे या लिंक्डइन पे, तो वहाँ से जो भी हमें रिस्पॉन्सेज आते हैं उनकी बेसिस पे हम ऑब्वियसली तमाम सीवीज को रिव्यू करने के बाद, विदाउट एनी बाइसनेस, विदाउट एनी any liking, disliking, any nepotism, हम मेरिटोरियस डिसीजंस लेके शॉर्टलिस्ट करते हैं। और फिर उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है इंटरव्यू का, तकरीबन नॉर्मली 4 to 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, और हर लेवल पे एक ऑटोनॉमी है कि किसी वजह से भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में से जो भी हमारे पास लोग निकल के आते हैं,
वो फिर ऑब्वियसली मेरिटोरियसली बेस पे सिलेक्ट हुए होते हैं, तो वो फिर कोशिश होती है कि अट्रैक्ट तो कर लिया, रिटेन भी करें। तो हमारे यहाँ जो रिटेंशन लेवल है लोगों के कंपनी में काम करने के, वो काफ़ी अनलाइक अदर कंपनीज काफ़ी लंबी लंबी ड्यूरेशन है। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर प्रोसेस है। तो सर फार्म ईवो किस तरह रिटेन करती है अपने एम्प्लॉयज को? एम्प्लॉय रिटेंशन का जो है वो क्या क्राइटेरिया है फार्म ईवो में? अच्छा, एक ग्लोबल फिनोमेना है आजकल, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि एम्प्लॉय अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, रिटेन नहीं हो पाते हैं, चाहे कोई भी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिल्कुल। इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी फील्ड हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो, एफएमसीजी हो। और अच्छा, कुछ उसमें ब्लेम जो है वो दिया जाता है जेनजीज को, या जेनजीज जो है वो रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन जेनजीज के साथ तो चले, उनका अपना एक माइंडसेट भी होगा, या कोई उनके अपने एक पर्टिकुलर रीजन भी होंगे, लेकिन जेनेरिकली अगर हम बात करें ना, तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ये रिटेंशन की। अच्छा, रिटेंशन के बड़ा सिंपल देखें मेथड है कि कहीं पे भी वो अप्लाई हो सकते हैं, कि इफ यू आर गिविंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू एनी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जहाँ पे एंगेज फील करे अपने आप को, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर हो, उसके केपीआईज, उसके उसका एनुअल अप्रेजल, उसकी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी जिस तरह से हम उसको लेके चल रहे हों, या मार्केट कंपैटिटिव सैलरीज, वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, इंटरनल प्रमोशंस कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल। और हम ये भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी कोई पोजीशन हमारे पास टॉप लेवल पे आएगी या कहीं पे भी आएगी, तो लोग नीचे से ही प्रमोट होंगे, rather than कि हम लैटरल हायरिंग करें और बाहर से किसी को लेके आएं। तो ये भी बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है हमारे रिटेंशन स्ट्रैटेजी। तो सर जूनियर और सीनियर पोजीशंस जो होती हैं उनका जो हायरिंग का प्रोसीजर है वो दोनों के लिए सेम ही है? नहीं, डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स कि किस लेवल पे हम हायरिंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स की बात करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2000 प्लस सेल्स फोर्स है, तो वो ज़्यादातर हम जूम पे और टेलीफोनिक इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। वहाँ पे रिलेटिवली 2 to 3 राउंड नॉर्मली होते हैं, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी हेड ऑफिस और फैक्ट्री पोजीशन या की पोजीशंस, तो वहाँ नॉर्मली 4 to 5 राउंड होते हैं। उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ इंटरव्यूज हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। सर आप यहाँ 10 साल से मौजूद हैं माशाल्लाह से, तो आप ये बताइए कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है फार्म ईवो में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हमें लगता तो ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन हमारी होगी काफ़ी ज़्यादा, तभी इतने अरसे से हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि यू नो शुड नॉट सेटल फॉर वॉट एवर यू हैव अचीव। यस। आप हमेशा स्ट्राइव करते रहें कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या अचीव करना है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन बिटवीन द एचआर एंड द एम्प्लॉइज। तो एक डिस्कनेक्ट होता है जहाँ पे आप को लगता है कि यार दे आर अफ्रेड ऑफ एचआर, या उनको उतना ट्रस्ट नहीं है उस पे। तो सबसे पहले तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू मिनिमाइज दिस गैप, कि हम एम्प्लॉइज के पास जाएं, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके रियल इश्यूज को सुने, रादर देन कि हम जो गैप फाइंडिंग होती है वहां से हमें पता चले। तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आप तक, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप प्रॉब्लम खुद जाके आइडेंटिफाई करें और आप खुद उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करें, तो वो ज़्यादा आपको राइट फ्रॉम द हॉर्सेस बात आपको पता चलता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में ये था कि एक तो हमने एक जो डर होता है ये चार से लोगों का, वो खत्म किया। अब उसमें कुछ लोगों का अपना इंडस्ट्री में ये होता है कि यार हम ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते लोगों से, और उसमें कोई हमसे कॉन्फिडेंशियलिटी निकल सकती है, हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरा हमेशा इश्यू होता है कि आप अगर प्रोफेशनल रहते हैं, तो यू कैन कीप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद अ फ्रेंडली नेचर एज वेल। सो ताकि लोगों को कोई हॉस्टाइल फीलिंग ना आए, कोई ऐसा रॉन्ग इंप्रेशन फ्रॉम एचआर ना आए, तो वो खुद अपने प्रॉब्लम्स लेके आए उससे। और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन में ये है कि हम हमारा जो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ पे जो स्टैब्लिश किया, तकरीबन पिछले 8-10 सालों से पेपरलेस है, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, जिसमें राइट फ्रॉम द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, आपकी गोल सेटिंग से लेके मिड ईयर रिव्यूज एंड देन फाइनल रिव्यूज एंड ऑल दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, राइट। और उसके साथ साथ उसमें एक रिवर्स इवैल्यूएशन का भी हमने कॉन्सेप्ट डाला है, जो कि बहुत अनलाइकली है इंडस्ट्री के अंदर। ये मैंने कहीं और भी इसका जिक्र किया था, तो काफी लोगों ने कहा था कि यार इसको जरा सा आप इलाबोरेट कीजिएगा करके। तो कुछ लोगों ने काफी मुझसे अलग से भी पूछा कि किस तरह से इसको आपने इनकॉर्पोरेट किया, इसका कितना वेटेज है, किस तरह से। तो एक तो परफॉर्मेंस वाइज की चीजें हो गई। फिर कॉमन मैंने स्ट्रैटेजी पे भी हमने काफी काम किया, अपनी एक कॉमन मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें मार्केट कंपैटिटिव रहना है।
क्योंकि जिस तरह की इस वक्त भी ऑल आर ऑब्वियसली फेसिंग हाई इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इनफैक्ट, तो उसमें यू हैव टू बी रिमेन फेयर विद द पीपल। सो थोड़ा सा अगर मैं इसको मजीद इलाबरेट करूँ, देयर इज अ distributive fairness and there is a procedural fairness when it comes to compensation. So distributive fairness ये है कि whatever the amount I am getting is perceived to be right or correct, ये जो amount मुझे सैलरी के मद में मिल रहा है वो बिल्कुल फेयर है। प्रोसीजरल फेयरनेस इज दैट कि जिस प्रोसेस से वो अमाउंट निकला है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो फेयर होना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रोसीजरल फेयरनेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो उस पर हमने बहुत सारा काम किया। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें नॉट ओनली एम्प्लॉयज को हम एंगेज करते हैं, हम एम्प्लॉयज के बच्चों को भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में जो है ना वो एंगेज करते हैं। हमारे एक बहुत ही फेमस जो है वो इनिशिएटिव है जिसमें हम ईद कार्ड पे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों से बनवाते हैं वो कार्ड, और उनको फिर हम जो है ना बुलाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो एक फैमिली और उसका जो कनेक्ट डेवलप होता है ना हमारा, वो बड़ा आइडियल होता है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी इनिशिएटिव होते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, जो हम न्यू ईयर पे भी करते हैं, ईद पे, बकरीद पे, बहुत सारी चीज़ों में हम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जो हम समझते हैं कि इट्स आवर कंट्रीब्यूशन टू फार्मिंग। सर एक एचआर पे एक टर्म यूज होती है 360 फीडबैक जो होता है, तो फार्म लीव उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, थोड़ा मुझे इस चीज के बारे में बताइए। राइट। अच्छा, 360 डिग्री फीडबैक जो है वो ऑब्वियसली एक बड़ा फेमस टूल है और वो हर कंपनी में होना चाहिए। हमने 2016 में जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे उसमें ये भी था कि हम 360 डिग्री फीडबैक भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली जो फीडबैक कल्चर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उस वक्त ही लोगों को कॉन्फिडेंस आता है जब आप इस तरह के इनिशिएटिव्स को एवरी नाउ एंड देन करते रहें, ताकि वो लोगों को लगता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन या कोई बात करूंगा तो वो लीक हो जाएगी, और वो फिर इसलिए वो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप फीडबैक का एक ऐसा सिस्टम रखें बार बार जिसको आप चलाते रहें, तो वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा हेल्दी एक डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो 2016 में हमने किया, और हम जो मैंने अपने मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, अगर हम टॉप से शुरू करेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा कि हमने अपने आप को सबसे पहले जो है ना इस चीज के लिए जो है ना वो एक्सपोज किया इस पूरे प्रोसेस से। वहाँ हमने किया, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, और उससे फिर हमें बहुत सारी और चीज़ों का भी पता चला कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में और भी करना है। उसके बाद हमने उसको N-1 के बाद N-2 यानी कि एक लेवल और नीचे लेके गए। फिर इंटरेस्टिंगली 2018 में हमने इसको फील्ड के लिए भी किया, यानी कि अपने सेल्स फोर्स के लिए भी किया। तो उसको करने के बाद ये है कि हमारी ये पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई, और फिर हमने एक दो साल रुकने के बाद अभी रिसेंटली इसी साल, मतलब 2-3 महीने पहले जो है एक्टिविटी को हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो हमें फिर नीचे से कुछ पता लग रही होती है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे। और ऑब्वियसली तीसरी, जैसे हम सब जानते हैं कि इट्स फॉर पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, और इसको अप्रेजल के साथ टैग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसके जो है ना वो उसकी स्प्रेड जो है वो ठीक है। सर ये आप मुझे बताइए कि आपकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए फार्म वो क्या एफर्ट्स कर रही है, और आपके होते हुए कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपने इनिशिएट किए। राइट। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस साइकिल होता है, हम सब जानते हैं, और उसके लिए वो उसका प्रोसेस स्टार्ट ही होता है कि आपने जो है ट्रेनिंग या लर्निंग नीड्स असेस करने होते हैं, और जैसे ही वो लर्निंग नीड्स असेस की जाती हैं उसके बाद उसका एक ट्रेनिंग कैलेंडर पूरा बनाया जाता है, और वी हैव बेस्ट इंटरनल ट्रेनर अवेलेबल। और जहाँ हमें जरूरत पड़ती है, हमें लगता है, हम वी कैन वी ऑलवेज एंगेज एक्सटर्नल ट्रेनर्स एज वेल। ग्रीन एचआर के बारे में बताइए, और ये पाकिस्तान में ग्रीन एचआर का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अभी तक भी बहुत सारी कंपनीज ने अडॉप्ट नहीं किया है, तो ये बताइए कि पाकिस्तान कितने सालों में आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से तमाम कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, जिसमें हम जो ये कहते हैं ना कि ऑफिस में जिस तरह से ग्रीन एचआर के बारे में कि पेपर यूज नहीं होना चाहिए और फुल ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, तो आई थिंक जब तक हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेंगे कि हमें जो है हर चीज की एक कॉपी चाहिए, हर चीज हमारे सामने नजर आनी चाहिए। अब तो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अब तो हर चीज मोबाइल में ही है हमारी। तो मोबाइल इज द द बेस्ट टूल के जो आप कैरी करें और उसमें तमाम चीजें आती हैं, वाइल ड्राइविंग, वाइल ट्रैवलिंग, कहीं पे भी। तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है हर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि वो किस तरह से ग्रीन एचआर को कितने जल्दी अडेप्ट करती है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें अभी स्टिल 5 to 7 years या 10 years के करीब लगेंगे। ठीक है। सर आप कोई अपनी जर्नी की चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में बताइए जो आपने एज अ डायरेक्टर एचआर फेस की। हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके 1 या 2 सालों तक हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय टर्नओवर का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है फील्ड के हवाले से। और यू नो सेल्स में जो सैलरीज आप जितने भी उसमें आप वेरिएशन ले आए, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हमेशा रहता है, यानी कि लोगों का आना जाना उसमें बहुत रहता है। और सेल्स में अगर इतना ज्यादा टर्नओवर रहेगा लोगों का, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव या जो एनुअल टारगेट्स हैं वो अचीव कैसे करेंगे। तो उस पे हमने जो है ना काफी काम किया। अच्छा, इंडस्ट्री में भी जो है वो एक कहना चाहिए डायलेमा ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ही अच्छा खासा एक टर्नओवर होता है। उसको जब हमने लोगों को सेंसिटाइज करना शुरू किया इसके ऊपर, तो काफी अरसे तो हम लोगों को लगा कि यार ये एक नॉर्मल चीज है, व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग ऑन इट। तो उस वक्त मुझे याद है 36 या 37% टर्नओवर होता था, या 35 तकरीबन। इसका मतलब ये है कि 1/3 आपके लोग चले जाएंगे, 3 साल में आपकी पूरी टीम नहीं हो जाएगी। तो उसमें हमने लोगों को शुरू में तो बड़ा रिवॉर्ड करना शुरू किया कि जो अपने टारगेट्स का एक सर्टेन पोर्शन अचीव करे और उसका टर्नओवर ना हो तो हम उसको सर्टेन बेनिफिट्स देंगे। अच्छा, बेनिफिट्स में भी हमने बड़ी वेरिएशन रखी थी। हमने कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं रखा था, हमने रखा था कि उसको हम एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग एक्सटर्नली करवाएंगे। सॉरी, तो काफी अच्छा एक कंपटीशन आता गया लोगों के अंदर, और उसको बड़ा हमने ग्रेजुअली कम किया है। वो 1 साल या 2 साल की तो मेहनत की नहीं, अब जाके जो है वो अंडर 20 हम कह सकते हैं कि उसको टर्नओवर हुआ, यानी कि जो हमने 35-36% से स्टार्ट किया था। तो अब ये सेंसिटाइजेशन बड़ी जबरदस्त तरीके से लोगों में आ गई है कि अगर लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारे लिए भी आसान होगा अपने टारगेट को। सर पिछले कई सालों पे एचआर की जो डोमेन है उसमें बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आई है। पहले पर्सनल था, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन कैपिटल। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर एरा कौन सा था और मजीद इसमें क्या चेंजेस लाई जा सकते ओके, देखिए प्रोसेस में और मुख्तलिफ जितने भी किसी भी डिपार्टमेंट या डोमेन के चैलेंजेस होते हैं ना, वो इवॉल्व भी होते रहते हैं और उसमें हैं? नए चैलेंजेस आ जाते हैं। और ये जो नाम है ये तो चेंज होते रहेंगे, हो सकता है कि ये ह्यूमन कैपिटल के बाद और कोई नाम जो है वो आ जाए। अब तो टाइटल्स भी डिफरेंट हो गए हैं, बिल्कुल। पीपल्स चैंपियन, कल्चर एडवाइजर, कल्चर चैंपियन, ये तो सारे जार्गन और वो जितने भी हम यूज कर लें। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो द रोल हैज बीन इवॉल्व बड़ा ड्रास्टिकली और बड़ा क्विकली चेंज हुआ है पिछले तकरीबन अगर हम कहें 15-20 ईयर्स में। इनफैक्ट जब मैं मास्टर्स कर रहा था ना 2005-6 में, तो हार्डली यू कैन फाइंड एनी एचआर डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में बात करते हैं। और उसके बाद व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड केम बैक टू पाकिस्तान, तो उस वक्त एचआर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश होने शुरू हो गए। तो जाहिर बात है वो सिर्फ पहले फाइलिंग, डाटा एंट्री, फिर बाद में थोड़ा सा रोल बेहतर हुआ तो पेरोल का सेक्शन आ गया, थोड़ा सा और बेहतर हुआ तो कुछ हायरिंग के डॉक्यूमेंटेशन आ गई। लेकिन फिर जो स्ट्रेटेजिक रोल आना शुरू हुआ कि आपके इनपुट चाहिए, आपकी अलाइनमेंट चाहिए, आप बजटिंग करेंगे, आप रिसोर्स को मैनेज करेंगे, वो जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। अब ये है कि जिस तरह एडवाइजर्स होते हैं, तो उस तरह एचआर का भी बड़ा जबरदस्त रोल है कंपनी को आगे लेके जाने में, कि अपनी एक इनपुट देने में। तो ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है और इसमें अभी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सर आप ये बताइए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एम्प्लॉय कल्चर को किस तरह एम्प्लॉय किया जाता है, किस तरह का कल्चर है यहाँ का? अच्छा, कोशिश यही होती है कि बड़ा कंड्यूसिव कल्चर हमारा रहे और बड़ा फ्रेंडली और एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर रहे, और उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स भी की हैं चीज़ों में। लेकिन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितना ज़्यादा कल्चर कंड्यूसिव है व्हेन इट कम्स टू और ट्रांसपेरेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन, व्हेन इट कम्स टू हायरिंग। आपकी हायरिंग पॉलिसीज कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, आपका कल्चर जो है इनोवेशन को कितना फॉस्टर करता है, और कोलैबोरेशन को कितना फॉस्टर करता है। और उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरह से रन करता है और उस पर कितना कुछ जो है वो लोगों का कितना बिलीव है कि ये टोटली मैरिटोरियस है और मेरिट पे ही इसका प्रमोशन और बाकी चीजों की फैसले होते हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं ना कि ओपन डोर पॉलिसी, और नॉट having any fear of giving
पॉजिटिव और जेन्युइन फीडबैक, तो ये चीजें एक वर्क कल्चर को बड़ा ना अच्छा बनाती है। और ये प्रूव करते हैं आपके वो एम्प्लॉइज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एंड दे ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट द कल्चर, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्पाइट कि वो चले भी गए किसी और जगह पे या किसी अच्छी बेहतर पोजीशन पे, तो वो आपके असल जो है ना वो एम्बेसडर होते हैं। Sir, any message for our readers? मैसेज यही है कि अगर कोई एचआर फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, या जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि एचआर के बारे में एक बड़ा एक चीज मशहूर है कि उनको बिजनेस की इतनी ना, जिस नेचर ऑफ बिजनेस में वो काम कर रहे होते हैं, जिस इंडस्ट्री में, उसकी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि वर्किंग नॉलेज लेना उस जगह की, ऑपरेशनली कैसे काम होता है, वो बड़ा जरूरी है एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास ग्राउंड नॉलेज होगी ऑपरेशंस की, उतना ज़्यादा आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, या स्ट्रैटेजीज या अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं, जो कि एम्प्लॉय फ्रेंडली भी होंगी और आप उस पर पूरी आपकी कमांड भी होगी। दूसरा ये कि थोड़ा सा स्ट्राइव करना चाहिए कि कनेक्ट डेवलप करनी है एम्प्लॉय के साथ, जो आपकी पूरी जो एचआर के साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ एक अच्छा कनेक्ट डेवलप होगा, तो हाँ, वो ट्रस्ट बिल्डिंग भी बड़ी आती है। और ट्रस्ट बिल्ड होता है कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस से, तो वो कैरेक्टर भी जो आपको शो करना है, कॉम्पिटेंस भी दिखानी है। और इसके साथ साथ ये है कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। कभी मीडियोक्रिटी पे हमें जो है ना वो जो है ना वो मतलब सेटल नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे के लिए जितना हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपने डोमेन में रहते हैं। Thank you so much, sir. थैंक It यू वेरी was मच। great to know about you.